خانزادہ بیگم کی واپسی کے بعد مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے شاہ اسماعیل صفوی کو شکر گزاری کے طور پر ایک طویل خط لکھا۔ میں اس بات کے لیے تا حیات ممنون کرم رہوں گا کہ شاہ والا نے آل تیمور کے عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ وقت گزرتے ہی اس یادگار محبت کو بھلا بیٹھوں اور اپنے محسنوں کی طرف سے آنکھیں پھیر لوں۔ اگر کبھی آزمائش کا وقت آیا تو آپ بچشم خود میدان عمل میں میرے الفاظ کو زندہ و متحرک دیکھیں گے۔ اس خط کے ساتھ ہی بابر نے شاہ ایران کی خدمت میں قیمتی تحائف روانہ کیے۔ اگرچہ شیبانی خان کا قصہ پاک ہو چکا تھا، لیکن ازبکوں کا ایک ایک ظلم اسے یاد تھا، اور یہ انہی مظالم کی گونج تھی جسے سن کر بابر کی آتش انتقام ایک بار پھر بھڑک اٹھی تھی، اور قلت افواج کے باوجود اس نے بدخشاں پر حملہ کر دیا تھا۔ ازبک سپاہی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ محاصرہ اٹھا کر چلا جانے والا بابر کسی زخمی شیر کی طرح پلٹ پڑے گا۔ مغلوں کا یہ حملہ بڑا خوفناک تھا۔ غریب الوطنی کی حالت میں قتلہ خانم کی موت، خانزادہ بیگم کے ساتھ شیبانی خان کا وحشیانہ سلوک، تیمور کے وارث کے ساتھ ازبکوں کا تحقیر آمیز رویہ، غرض یہی وہ عوامل تھے جس نے بابر جیسے متحمل مزاج حکمران کو بھی وحشی بنا دیا تھا۔ دوسری طرف احمد جمال بھی پاگل ہو رہا تھا۔ عالیہ تاجدار کی موت نے اس کا صبر و سکون غارت کر دیا تھا۔ وہ بنیادی طور پر کتاب اور قلم کا آدمی تھا، لیکن گردش وقت کے سبب شمشیر و سناں نے کتاب و قلم کی جگہ لے لی تھی۔ اس نے بابر کے ساتھ بے شمار جنگیں لڑی تھی اور وہ بلا ضرورت انسانی خون بہانے سے گریز کرتا تھا، مگر آج اس کے تیور بہت مختلف تھے۔ بدخشاں پر حملے کے وقت احمد جمال کے شوق مارکہ آرائی نے جنون کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ وہ بنیادی طور پر کتاب اور قلم کا آدمی تھا، لیکن گردش وقت کے سبب شمشیر و سناں نے کتاب و قلم کی جگہ لے لی تھی۔ اس نے بابر کے ساتھ بے شمار جنگیں لڑی تھی اور وہ بلا ضرورت انسانی خون بہانے سے گریز کرتا تھا، مگر آج اس کے تیور بہت مختلف تھے۔ بدخشاں پر حملے کے وقت احمد جمال کے شوق مارکہ آرائی نے جنون کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ بابر کی طرح اس کے دل میں بھی یہ خلش رہ گئی تھی کہ کاش شیبانی خان زندہ ہوتا اور وہ ازبک حکمران سے عالیہ تاجدار کے ایک ایک قطرہ خون کا حساب طلب کرتا۔ پھر احمد جمال کے سینے کی یہی خلش وحشت میں تبدیل ہو گئی اور وہ شیبانی خان کے مظالم کا حساب اس کی قوم سے مانگنے لگا۔ بدخشاں کے اس مارکے میں بابر اور احمد جمال نے تنہا سینکڑوں ازبکوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ بدخشاں کے گلی کوچے دشمن کی لاشوں سے بھر گئے۔ اسی دوران بابر کے چچا زاد بھائی سلطان مرزا اور مہدی سلطان بھی ازبکوں کی قید سے چھوٹ گئے۔ جنگ اپنے آخری مرحلے میں تھی کہ اچانک خان مرزا بھی شاہ اسماعیل کی بھیجی ہوئی فوج لے کر بدخشاں پہنچ گیا۔ اب باقی ماندہ ازبکوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، مجبوراً وہ فرار ہو گئے۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں بابر نے ازبکوں کے خلاف نمایاں فتح حاصل کی تھی۔ بدخشاں پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد بابر امدادی فوج کو لے کر آگے بڑھا اور اس نے کسی بڑی خون ریزی کے بغیر حصار اور بغلان پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت مغل شہنشاہ کا لشکر 60,000 سواروں پر مشتمل تھا۔ سیاسی فضا بابر کے حق میں ہموار ہو چکی تھی اور وہ اس فضا سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ نتیجتاً مغل شہنشاہ نے بخارا پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بخارا پر ازبکوں کی حکومت تھی اور ان کا سردار عبید اللہ خان تھا۔ یہاں بھی ایک خون ریز مارکا ہوا، ہزاروں ازبک قتل کر دیے گئے اور ان کا سردار عبید اللہ خان پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ اس جنگ میں احمد جمال شدید زخمی ہوا۔ اگر وہ دوسری جنگوں کی طرح محتاط انداز میں لڑتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، مگر ازبکوں کے قتل کرنے کا جنونی جذبہ اسے دشمنوں کے نرگے میں لے گیا۔ انجام کار اس کے جسم پر بے شمار زخم آئے، لیکن تقدیر یاوری کر رہی تھی، اس لیے موت کے منہ میں جاتے جاتے پلٹ آیا۔ بابر نے دن رات تیمارداری کی۔ پھر جب احمد جمال خطرات سے نکل گیا تو ایک دن مغل شہنشاہ نے اسے تنہائی میں بہت ڈانٹا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو۔ تمہارے جنگ کرنے کا یہ انداز تو کبھی نہیں تھا۔ کیا تم اپنی جان گنوا دینا چاہتے ہو؟ بابر کے غصے میں بے پناہ محبت کی آمیزش تھی۔ شہنشاہ خوب جانتے ہیں کہ اس خادم نے کبھی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ احمد جمال بابر کی تنبیہ کے جواب میں مسکرانے لگا۔ مگر مجھے تو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے۔ بابر کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا تھا۔ اگر اپنے لیے نہیں
تو کم سے کم میری خاطر ان سانسوں کی قدر کرو۔ ابھی ہمارے سامنے بے شمار محاذ ہیں اور تم ایک عام سے محاذ پر جان کی بازی ہار دینا چاہتے ہو۔ احمد جمال خاموش ہو گیا۔ وہ مغل شہنشاہ کو کس طرح بتاتا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ پھر جب احمد جمال صحت یاب ہو گیا تو بابر نے بخارا میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا اور سکہ جاری کر دیا۔ ہنگاموں سے فراغت پا کر مغل شہنشاہ نے اپنے بھائی ناصر مرزا کو کابل کی حکومت عنایت کی اور شاہ اسماعیل صفوی کے بھیجے ہوئے فوجی سرداروں کو خلعتیں اور انعامات دے کر رخصت کر دیا۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے بابر نے 8 مہینے شکار اور آرام میں بسر کیے۔ سردیوں کا زمانہ گزرتے ہی بابر سمرقند کی تسخیر کا منصوبہ تیار کرنے لگا۔ اس سلسلے میں احمد جمال بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا، اور اس جوش و خروش کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ جلد از جلد سمرقند پہنچ کر عالیہ تاجدار کی قبر پر حاضری دینا چاہتا تھا۔ ابھی یہ منصوبہ زیر ترتیب تھا کہ ازبک اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے ازبک خاندان کے ایک شخص تیمور سلطان کے گرد جمع ہونے لگے۔ پھر انہوں نے شیبانی خان کی جگہ اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ تیمور سلطان کچھ دن تک جنگی تیاریاں کرتا رہا، پھر ایک لشکر جرار لے کر بخارا کی طرف بڑھا۔ کوئی منصوبہ بندی نہ ہونے کے سبب شکست فاش ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اسی زمانے میں شاہ اسماعیل صفوی کی طرف سے نجم ثانی اصفہانی ایک کثیر فوج لے کر بخارا پہنچ گیا۔ بابر نے اس سے ملاقات کی اور پھر دونوں نے مل کر قلعہ افراسیاب پر حملہ کر دیا۔ اس معرکے میں ہزاروں ازبک سپاہی ہلاک ہو گئے اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نجم ثانی اس فتح کے بعد اپنے آپ کو رستم ثانی سمجھ رہا تھا اور ازبکوں کے خلاف اس قدر جوش میں تھا کہ انہیں دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہتا تھا۔ بابر بھی مصلحتاً قزل باشوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ جب ازبکوں نے اپنے 2 طاقتور دشمنوں کو مقابل پایا تو خود بھی متحد ہو گئے۔ نجم ثانی فتح کے نشے سے سرشار تھا، اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ازبکوں کی زیر زمین سرگرمیاں کیا ہیں۔ وہ انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم شدہ ایک منتشر قوم سمجھ رہا تھا، مگر جب وہ نجم ثانی کے سامنے صف آرا ہوئے تو اصفہانی سردار حیرت زدہ رہ گیا۔ ازبکوں کے لشکر کی تعداد نجم ثانی اور بابر کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر جب دونوں فوجوں میں رن پڑا تو ازبک سپاہی لکیر کھینچ کر لڑے۔ اس بار انہوں نے صرف آگے بڑھنے کی قسم کھائی تھی۔ انجام کار شام ہونے سے پہلے ہی ازبکوں نے جنگ جیت لی۔ نجم ثانی کو فرار ہونے کا بھی موقع نہ مل سکا اور وہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ خون میں نہا کر پیوندے خاک ہو گیا۔ مجبوراً بابر بھی اپنی مختصر سی فوج لے کر قلعہ حصار شادمہ کی طرف چلا گیا۔ ان پریشان کن حالات میں ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ مغلوں کی ایک شوریدہ سر جماعت نے بابر پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ پہرے داروں کی چیخو پکار سن کر مغل شہنشاہ شب خوابی کے لباس میں باہر نکل آیا اور اسے جوتا پہننے کی مہلت بھی نہ مل سکی۔ بابر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا محل سے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر رات کی گہری تاریکی میں بالا حصار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بابر شدید پریشانی کے عالم میں سمرقند پہنچا۔ یہاں کے لوگ پہلے ہی شیبانی خان اور ازبکوں کے مظالم سے بیزار تھے۔ اپنی اسی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں کے باشندوں نے شیبانی خان کی موت پر ہنگامہ خیز جشن منایا تھا۔ جب مقامی لوگوں نے مغل شہنشاہ کی آمد کے بارے میں سنا تو وہ قطار در قطار بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حسب سابق اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا۔ سمرقند کی حدود میں داخل ہو کر بابر نے اطمینان کی گہری سانس لی تھی، مگر احمد جمال کے دل کا سکون غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت اس قبرستان میں گزارتا جہاں اس کے والد شیخ احمد گیاس اور عالیہ تاجدار زیر خاک سو رہے تھے۔ وہ جب تک قبرستان میں رہتا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ پھر شام کے قریب محل جانے سے پہلے عالیہ کی قبر کو مخاطب کر کے کہتا، خبر نہیں کہ میرا قافلہ حیات کہاں ٹھہرے گا، لیکن اگر کبھی مجھے اپنی زندگی پر اختیار حاصل ہوا تو سمرقند ہی میرا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ بہت دیر سے آیا لیکن تمہارے قریب آ تو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ سیاست کی ہنگامہ آرائیاں پھر مجھے تم سے دور لے جائیں، مگر میرے نزدیک زمان و مکان کے فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں ہمہ وقت اسی قبرستان میں تمہارے نزدیک رہوں گا۔ بابر کو جمال کی مستقل غیر حاضری کا علم ہوا تو مغل شہنشاہ نے ایک دن اس سے پوچھا، احمد، میں نے کچھ ضروری کاموں کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے تمہیں کئی بار طلب کیا، مگر ہر مرتبہ یہی معلوم ہوا کہ تم قصر شاہی میں موجود نہیں ہو۔ پھر بتانے والوں نے مجھے بتایا کہ تم اپنا زیادہ وقت یہاں کے ایک قبرستان میں گزارتے ہو۔
बाबर के किसी लफ्ज में तंज का शाइबा तक नहीं था, मगर फिर भी उसे अहमद जमाल के उस तर्ज अमल पर हैरत जरूर थी। अहमद जमाल एक लम्हे के लिए घबरा सा गया। उसे ख्याल गुजरा कि बाबर उसके मामूलात से आगाह हो गया है और किसी मुखबिर ने शहंशाह को बता दिया है कि वो रोज़ाना पाबंदी के साथ आलिया ताजदार की कब्र पर जाता है। अगरचे बाबर दोनों के जज्बाती ताल्लुक से बाखबर था, लेकिन अहमद जमाल नहीं चाहता था कि दुनिया का कोई भी शख्स उसके हवाले से आलिया ताजदार के बारे में कुछ सोचे। बदगुमानी तो कुजा, वो आलिया के सिलसिले में किसी गैर की खुशगुमानी का भी कायल नहीं था। हजार पर्दों में छुपकर मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को बादज मर्ग तमाशा बनाना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि जब बाबर ने कब्रिस्तान जाने का जिक्र किया तो अहमद जमाल कुछ परेशान सा नजर आने लगा, मगर फौरन ही उसने एक माकूल जवाज तलाश कर लिया। इस कब्रिस्तान में मेरे वालिद मोहतरम आराम फरमा है, मैं उन्हीं की खिदमत में हाजिर होने जाता हूँ। ये कहते कहते अहमद जमाल के लहजे से उदासी झलकने लगी थी। मैं समझता हूँ, बाबर ने अपने सर को हल्की सी जुम्बिश देते हुए कहा, मगर क्या एक कब्र पर रोजाना हाजिरी देना कुछ अजब सा नहीं लगता? मुगल शहंशाह का सवाल बड़ा मानी खेज था। अहमद जमाल के नज़दीक उस सवाल में कई मफाहिम पोशीदा थे। अगर आलिया ताजदार की कब्र वहां ना होती तो अहमद जमाल कुछ सोचे समझे बगैर बाबर के सवाल का जवाब दे देता, लेकिन उस वक्त एक नाजुक सूरत हाल मौजूद थी, इसलिए अहमद जमाल बहुत संभल कर बोल रहा था। बचपन में उन्हें देखा नहीं था, फिर उस महरूमी का इजाला कैसे होता, यही सोचकर चला जाता हूँ। अहमद जमाल ने अपने जज्बे की सही अक्कासी की थी, मगर मुगल शहंशाह उसकी गहराई तक ना पहुंच सका। और कब तक वहां जाते रहोगे? बाबर ने एक और सवाल किया। जब तक मैं समरकंद में मौजूद हूं, अहमद जमाल ने साफ साफ जवाब देते हुए कहा। इस शहर में मेरी मौजूदगी का एक ही मतलब है कि मैं हर वक्त वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर रहूं। अहमद, मैंने आज तक ऐसा मुर्दा परस्त इंसान नहीं देखा। बाबर के लहजे में तंज की बजाय वही तहज्जुर की कैफियत थी। मुर्दा परस्त नहीं शहंशाह, जिंदा परस्त। अहमद जमाल ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। शेख अहमद गियास के जिस्म को मौत आ गई, मगर उनका इल्म हमेशा जिंदा रहेगा। मैं इस हकीकत को भी जानता हूं, बाबर ने महज अहमद जमाल की दिलजोई की खातिर ये बात कह दी थी, वरना वो शेख अहमद गियास के इल्म की हकीकत से कतन नाआशना था। मुगल शहंशाह ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ शेर व अदब और नजूम की तालीम हासिल की थी, और वो इन्हीं मखसूस मौज़ूआत को अफजल तरीन अलूम समझता था। मजहब से उसे कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो शेख अहमद गियास के इल्म और उनकी शख्सियत को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। उसे उसके बाप उमर शेख मिर्जा ने बस इतना ही बताया था कि सुल्तान अबू सईद मिर्जा ने अहमद जमाल के वालिद शेख अहमद गियास को बेकसूर कत्ल करा दिया था। बाबर ने यह जांगुदाज वाकया उस वक्त सुना था जब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। वो फितरतन नरम दिल था, इसलिए शेख अहमद गियास के कत्ल की रुदात सुनकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था। मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई और वो मुसलसल जमाने के नशेबो फराज से गुजरता रहा, तो उसे अंदाजा हुआ कि आईने सियासत में ऐसी सजाएं भी जायज हैं। वक्त पड़ने पर खुद उसने भी कई हजार अफराद को कत्ल किया था। अपने उन्हीं तजर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर वो शेख अहमद गियास की मौत को भी एक सियासी जरूरत समझता था। बाबर के ख्याल में अगर शेख अहमद गियास कत्ल ना किए जाते तो सुल्तान अबू सईद मिर्जा का जाहो जलाल बेअसर हो जाता, और एक हुक्मरान के लिए लाजिम है कि वो हर हाल में रियाया के दिलों पर अपनी हैबत कायम रखे। बाबर के उसी अंदाजे फिक्र ने उसे मजबूर किया था कि वो अहमद जमाल से रोजाना कब्रिस्तान जाने का सबब दरियाफ्त करे। फिर जब अहमद जमाल ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान की तो मुगल शहंशाह की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। मैं इस हकीकत को मानता हूँ, मगर जिंदा इंसानों की मसरूफियात मुर्दा लोगों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। मैं तुम्हें इस अमल से रोकता नहीं, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ कि सियासी और दरबारी अमूर भी तुम्हारे मुंतजिर रहते हैं और तुम कब्रिस्तान के सन्नाटों में खोए रहते हो। मैं अपने फराइज से कभी गाफिल नहीं रहा। अगरचे अहमद जमाल को बाबर का इस्तफहामिया अंदाज गिरा गुजरा था, लेकिन फिर भी उसने बड़ी मतानत के साथ एहतराम शाही को मलहूज़े खातिर रखते हुए जवाब दिया। यह गफलत नहीं तो और क्या है? यकायक बाबर के लहजे से आकायत का रंग झलकने लगा था। अहमद जमाल बामुश्किल तलखी के उस घूंट को अपने हल्क से उतार सका। अगर मेरी ज़रूरत महसूस की जा रही थी तो शहंशाह किसी भी वक्त मुझे तलब कर सकते थे। तुम्हें खुद इसका एहसास होना चाहिए कि तुम्हारा शहंशाह दुनिया का सबसे ज्यादा मसरूफ इंसान है।
बाबर की आवाज कदरे बुलंद हो गई थी। उसे हजारों काम हैं। इस सूरत हाल में तुम पर लाजिम है कि हम वक्त उसके नजदीक रहो, पता नहीं कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। मैंने तो अपना पूरा बचपन और आधी जवानी आप ही के करीब रहकर गुजारी है शहंशाह। अहमद जमाल के लहजे से शिकायत का रंग नुमाया था। अगर कुछ दिन के लिए बाप की कब्र पर चला गया तो मुझसे इस कदर खफगी क्यों? मैं बरसों से आपकी बिसाते सियासत पर शतरंज के एक मोहरे की तरह गर्दिश कर रहा हूं। मौत के महाज पर मुझे भेजा गया, आफातो मसाइब के जहन्नम में मुझे झोंका गया, फिर भी कभी आपने मेरी जबान से हरफ इनकार सुना? कभी मेरी आंखों में नागवारी या सरकशी का रंग देखा? हालांकि मैं जंगो जदल की दुनिया का आदमी ही नहीं था, फिर भी आपके इशारे पर सर वाकफ रहता हूं कि जहां हुक्म हो वहीं नजराना जहां पेश कर दूं। फिर तुम किस दुनिया के आदमी हो अहमद? बाबर ने चौंक कर कहा। शहंशाह खूब जानते हैं कि मैं किताबो कलम का आदमी हूं, अहमद जमाल ने शदीद जज्बाती लहजे में कहा। मैं उस शख्स का वारिस हूं जो मदरसे के फर्श पर बैठकर बेखबर इंसानों को आगाही का सबक दिया करता था, लेकिन गर्दिश वक्त ने दरसगाह के बामो दर गिरा दिए और मुअल्लिम को तहे तैग करके मौत की नींद सुला दिया। अहमद जमाल इंतहाई शाइस्ता लहजे में बाबर के दादा सुल्तान अबू सईद मिर्जा का फसाना जबरो सितम बयान कर रहा था। एक गैरतमंद बेटे का फर्ज है कि वो अपने बाप के मंसूबे को तकमील तक पहुंचाए, मगर मेरी ये हालत है कि मैं अब तक अपने फर्ज की अदायगी से कासिर रहा हूं। इसलिए रोजाना वालिद मोहतरम से मुआफ़ी मांगने चला जाता हूं कि चंद रोज की मोहलत और दे दीजिए। आखिर तुम्हें अपने फर्ज की अदायगी से किसने रोका है? बाबर के लहजे की हैरत बदस्तूर थी। सैयद मेहदी ने अहमद जमाल के तर्ज गुफ्तगू में कोई सियासत, कोई पेचीदगी नहीं थी। मैं नहीं जानता कि सैयद मेहदी ने मेरे हाथ से कलम छीनकर मुझे शमशीर क्यों सौंप दी। क्या ये शमशीर तुम्हें इतनी ही गिरा महसूस होती है? मुगल शहंशाह ने एक और सवाल किया। अगर ऐसा है तो फिर इस शमशीर को हाथ से छोड़ क्यों नहीं देते? बाबर के लहजे में तंज की हल्की सी आमेजिश थी। कई बार सोचा, मगर सैयद ने हर मर्तबा यही तनबीह की, खबरदार ऐसा हरगिज ना करना। जोश जज्बात में अहमद जमाल ने एक खास राज जाहिर कर दिया जो सिर्फ उसके और सैयद मेहदी के दरमियान किसी खुफिया मुआहिदे की तरह था। आखिर सैयद ऐसा क्यों चाहते थे? बाबर ने उस सिलसिले में मजीद वजाहत तलब की। अहमद जमाल संभल चुका था। शहंशाह, इस जिक्र को छोड़ दें, सिर्फ मेरी कोताहियों की निशानदही करें। तुमसे कोई कोताही सरजद नहीं हुई है, बस तुम्हारी मुसलसल गैर हाजिरी से परेशान सा रहता हूं। अहमद जमाल को आमादा ना पाकर बाबर ने भी मौजू बदल दिया था। इस बार मुझे समरकंद की फिजा कुछ अजीब सी महसूस हो रही है। मैं शहंशाह की बात का मफहूम नहीं समझा। अहमद जमाल ने रुक रुक कर कहा। मकामी बाशिंदों की मोहब्बत में नुमाया कमी आ गई है, बाबर ने तशवीशनाक लहजे में कहा। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की आम रियाया भी मेरा मजाक उड़ा रही है। ये शहंशाह का फरेब नजर ही हो सकता है। अहमद जमाल ने बाबर के अंदेशों को कोई अहमियत नहीं दी। अहले समरकंद आपके साथ ऐसा तहकीर आमेज सलूक नहीं कर सकते। वो ऐसा ही कर रहे हैं अहमद। बाबर का चेहरा बुझा बुझा नजर आ रहा था। समरकंद और बुखारा के उमारा ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कैसा हुक्म? अहमद जमाल हैरत ज़दा रह गया। ये कैसे मुमकिन है शहंशाह? जिन लोगों ने शेबानी खान जैसे दरिंदे के मुकाबले में आपका साथ दिया हो, उनका रवैया किस तरह बदल सकता है? मैंने समरकंद और बुखारा के सिपाहियों को हुक्म दिया था कि वो भी शाह इस्माइल सफवी के फौजियों की हमरंग वर्दी पहना करें और किजलबाशों की तरह अपने सरों पर सुर्ख ताज लगाया करें। बाबर ने अपने हुक्म की वजाहत करते हुए कहा। आपने ऐसा क्यों किया शहंशाह? फरते हैरत से अहमद जमाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं शाह इस्माइल सफवी के एहसानात का कर्ज उतारना चाहता था, मुगल शहंशाह ने बेझिझक कहा। एहसान उतारने का ये कौन सा तरीका है कि आप समरकंद और बुखारा के सिपाहियों को किजलबाशों के रंग में रंग डालें? यकायक अहमद जमाल के चेहरे पर अजियत और कर्ब के आसार नुमाया हो गए थे। शाह इस्माइल सफवी ने कड़े वक्त में आपकी मदद की थी। अगर शाह ईरान पर कभी ऐसा कोई वक्त आ जाता तो आप भी माली या फौजी इमदाद की पेशकश कर देते। बाबर शदीद परेशानी के साथ अहमद जमाल की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं, अहमद जमाल ने ठहर ठहर कर कहा, मगर एहसान का बारे गरा इस तरह भी नहीं उतारा जाता कि आप अपनी जात ही की नफी कर डालें और अपने जांबाजों को जहनी तौर पर शाह इस्माइल सफवी का गुलाम बना डालें। तुम क्या कहना चाहते हो अहमद? बाबर का लहजा नाखुशगवार हो गया था। शाह इस्माइल सफवी आखिर कौन है?
अहमद जमाल ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, महज एक दुनिया परस्त हुक्मरान जो हम वक्त अपनी सल्तनत को वुसअत देने की फिक्र में गर्क रहते हैं। आपसे उनकी ये मोहब्बत एक सियासी जरूरत है, इसके सिवा कुछ नहीं। शेबानी खान के मुकाबले में उन्होंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि वो आले तैमूर से किसी किस्म की अकीदत रखते हैं। मोहब्बत और ताउन के सारे मुजाहिरे सिर्फ इसलिए थे कि किसी तरह शेबानी खान उनके रास्ते से हट जाए। वो उज़्बकों की फौजी ताकत को निस्तो नाबूद कर देना चाहते थे। बिलाखिर उन्हें अपने मंसूबों में शानदार कामयाबी हासिल हुई और उनका सबसे ज्यादा ताकतवर हरीफ शेबानी खान मारा गया। अब शाह इस्माइल सफवी को रोकने वाला कौन है? बज़ाहिर कोई भी नहीं। आप एक हसास और गैरतमंद हुक्मरान हैं। आपने शाह के एहसानात को इतनी शिद्दत से महसूस किया कि शायद उनकी औलाद भी इस तरह महसूस ना कर सके, और फिर उसी शिद्दत एहसास में आपने वो हुक्म जारी कर दिया जो समरकंद और बुखारा के अमीरों को नागवार गुजरा है। गुस्ताखी मुआफ तमाम उमारा अपनी नागवारी के इजहार में हक बजानिब है। वो आले तैमूर को आज़ाद और सरबुलंद देखना चाहते हैं। अगर आपके हुक्म के मुताबिक उन लोगों ने अपने सरों पर सुर्ख ताज सजा लिया और अपनी वर्दियों को किजल बाशों की वर्दियों के हमरंग बना लिया, तो अजीम मुगलों की पहचान कहाँ बाकी रहेगी? देखने वाले आपके जांबाजों को देखकर यही कहेंगे कि मुगल सिपाही भी किजल बाशों की फौज का एक हिस्सा है। पहले ये तासुर आम होगा, फिर कहने वाले ये कहेंगे कि मुगल शहनशाह भी इस्माइल सफवी के एक मखसूस कारिंदे हैं। क्या आप मुस्तकबिल करीब में ये सुनना गवारा करेंगे? यकायक अहमद जमाल का लहजा बहुत ज्यादा पुरजोश हो गया था। अहमद जमाल की गुफ्तगू सुनकर बाबर सन्नाटे में आ गया। उसकी पेशानी शिकनों से भर गई और वो बहुत देर तक हालात के उस अजीब पहलू पर सोचता रहा। फिर अहमद जमाल से मुखातिब होकर बोला, अगर मैं तुम्हें हुक्म दूं कि किजल बाशों की तरह फौजी वर्दी पहन लो और अपने सर पर सुर्ख ताज सजा लो। मेरी बात और है शहनशाह, अहमद जमाल ने अहले वफा के लहजे में जवाब दिया। मैं तो अपने अहद का पाबंद हूं, मगर दिल से मुझे भी यह गवारा नहीं होगा कि मेरे शहनशाह का साया किसी दूसरे फरमा रवा के साया इक्तदार में जम हो जाए। मैं अशरफियों के ढेर या 5,000 और 10,000 मनसब के लिए रस्म वफा नहीं निभा रहा हूं। मैंने अपने रोज़ो शब का सकून और आसाइशें इसलिए कुर्बान की हैं कि आप मार्काए हयात में मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ठहरे, और मैंने अपना खून इसलिए अर्ज़ा किया है कि आपके कसरे जाहो जलाल के नक्शो निगार और ज्यादा दिलकश हो जाएं। मेरी ये जासूसी इसलिए नहीं कि अहले दुनिया आपको शाह इस्माइल सफवी का फरमा बरदार कारिंदा कहकर पुकारें। शहनशाह, अपने इस हुक्म को वापस ले लीजिए कि यह हुक्म आपके अजमत और जबरूत की नफी करता है। हम बेसरो सामा सही, मगर जानने वाले खूब जानते हैं कि हमने भूख और प्यास के बदतरीन मौसम में भी गदागराना लहजा इख्तियार नहीं किया है। अगर हमारे कदमों के नीचे 2 गज जमीन भी ना रहे तो हम अपनी शनाख्त खोने के लिए तैयार नहीं हैं। अहमद जमाल के दलाइल में बड़ा वजन था और उनसे सियासत के कई नाजुक गोशे बेनकाब हो रहे थे, मगर फिर भी बाबर अपना ये मखसूस हुक्म वापस लेने के लिए आमादा नहीं था। मैं तुम्हारी बातों से बड़ी हद तक इत्तेफाक करता हूं अहमद, लेकिन अहकाम शाही की वापसी हुक्मरान की कमजोरी की दलील है। इस फैसले के बाद समरकंद और बुखारा के उमारा की नजरों में मेरी क्या हैसियत बाकी रहेगी? अगर आज उनका ये मुतालबा तस्लीम कर लूं तो कल वो कोई दूसरा मुतालबा पेश कर देंगे। फिर तुम जानते हो कि मुतालबात का यह सिलसिला कहां जाकर ठहरेगा। नहीं शहनशाह, ये कोई मुतालबा नहीं है, अहमद जमाल ने पुरजोश लहजे में कहा। उनके जज्बों की तरफ गौर से देखिए। वो अपने शहनशाह को दूसरे हुक्मरान के तसल्लुत से बचाना चाहते हैं। अहमद जमाल ने बहुत देर तक बहस की, मगर बाबर अपना हुक्म वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। मजबूरन अहमद जमाल ने समरकंद और बुखारा के नाराज उमारा से अलहदा अलहदा मुलाकातें की। आखिर शहनशाह के उस हुक्म की तामील में आपको क्या कबाहत महसूस होती है? अहमद जमाल ने हर अमीर से एक ही सवाल किया। हम मुगल शहनशाह को इतना आकिबत ना अंदेश नहीं समझते थे। नाराज उमारा में से हर एक का जवाब भी यकसा था। सियासी एहसान का बदला सियासत ही से उतारा जाता है। शहनशाह चाहते हैं कि हम किजलबाश का लिबास पहनकर अपने वजूद को फना कर दें। हम सियासी तकाज़ों की अहमियत से इनकार नहीं करते, मगर शाह इस्माइल सफवी और हमारे अकायद में बड़ा फर्क है। शहनशाह को चाहिए कि वो दोस्ती के इस रिश्ते को अपनी ज़ात तक महदूद रखें। अहमद जमाल समरकंद और बुखारा के अमीरों की गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गया। बहुत देर बाद उस पर एक खौफनाक हकीकत मुनकशिफ हुई थी। हर अमीर बाबर की नीयत पर शक कर रहा था, और ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई थी कि बाबर एक वसीउल नज़र और रोशन ख्याल इंसान था, और उसकी उस रोशन ख्याली पर समरकंद और बुखारा के उमारा शक करने लगे थे।
बाज़ अमीरों ने तो अहमद जमाल से यहाँ तक कह दिया था कि बाबर अपने मफादात की खातिर इन इलाकों को शहनशाह ईरान के पास रहन रख देना चाहता है। मुगल शहनशाह पर यह बड़ा संगीन इल्ज़ाम था। अहमद जमाल ने उमरा के शकूक व शुबहात दूर करने की बहुत कोशिश की, मगर बात बिगड़ चुकी थी। आखिर अहमद जमाल ने इत्तिमाम हुज्जत के तौर पर कहा, अगर शहनशाह अपना यह हुक्म वापस ले लें तो फिर आप हजरात का रद्द अमल क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। तमाम उमरा ने बैक ज़बान कहा, हम बाबर का बहुत एहतराम करते थे और उस उलुल अज़्म नौजवान की शक्ल में मुस्तकबिल के एक मुदब्बिर और ताकतवर हुक्मरान का चेहरा देखते थे, मगर इस शख्स की नादानियों ने सब कुछ ज़ाया कर दिया है। वो इस्माइल सफ़वी को अपना निजात दहिंदा समझे, यह उसका अपना ज़ाती फेल है, लेकिन हमारे दिल और तलवारें उसके साथ नहीं हैं। सियासत लाख ज़रूरतों का नाम हो, मगर यह कारोबार भी एतबार के बगैर नहीं चल सकता, और बाबर अपना एतबार खो चुका। अब उसकी तरफ से किया जाने वाला ऐलान किसी मसलहत के तहत होगा, और हम मसलहत के बंदे नहीं हैं। हमने बाबर से किसी गरज के बगैर मोहब्बत की थी, मगर उसने हमारे जज्बों की कदर नहीं की। अहमद जमाल सोच भी नहीं सकता था कि मुगल शहनशाह की एक जज्बाती गलती इतना भयानक रुख इख्तियार कर लेगी। वो नाकाम व नामुराद वापस लौट आया और उसने सारी सूरत हाल बाबर के गोश गुजार कर दी। हाँ, ये मेरी गलती थी। बाबर ने एक हकीकत शनास और हौसलामंद इंसान की तरह खुले दिल से एतराफ़ कर लिया, और मुझसे यह गलती इसलिए सरजद हुई कि मैं जज्बात के सैलाब में बह गया, वरना मेरा यह इरादा हरगिज़ नहीं था कि मैं शाह ईरान की गुलामी का तोक पहन लूँ और अपनी कौम के पैरों में भी किसी गैर की इताअत की जंजीरें डाल दूँ। खुदा की कसम, इन लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा। ये कहते कहते बाबर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। शहनशाह, मौजूदा फ़िज़ा में ये एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है। अहमद जमाल ने इजहार तासुफ़ करते हुए कहा, काश ऐसा ना होता। होने दो जो कुछ हो रहा है अहमद। यकयक बाबर का गरूर शाही लौट आया था। वो कौन सा दिन था जब हमारे खेमों के अंदर खूनी आंधियां नहीं चली, और वो कौन सी रात थी जब सैलाब बला हमारे सरों से नहीं गुजरा। हमसे ज्यादा मौसम की नामेहरबानियों से कौन वाकिफ होगा। हम आगोशे हवादिस के परवरदा हैं, कैफो निशात के परस्तार हमारी जबान क्या समझेंगे। जाओ और अपने तमाम खेमे उखाड़ डालो। हम समरकंद के सहरा में रहने वाले खाना बदोश थे, कल सुबह होते ही किसी और तरफ कूच कर जाएंगे। उसके बाद बाबर ने गिनती के चंद जानिसारों को अपने उस फैसले से आगाह किया और नए सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। समरकंद और बुखारा के सियासी हलकों में एक हलचल सी मची हुई थी। अभी वो लोग मुख्तलिफ क्यास आराइयों में उलझे हुए थे कि बाबर ने तमाम मकामी उमारा को दरबार में तलब किया। मुझे अपने दस्ते रास्त अहमद जमाल की ज़बानी मालूम हुआ है कि तुम लोग मेरी तरफ से सख्त बदगुमानियों में मुब्तला हो गए हो। बाबर इंतहाई पुरजलाल लहजे में समरकंद व बुखारा के अमीरों से खिताब कर रहा था, और मुझे यह भी पता चला है कि अहमद जमाल ने मेरी भरपूर वकालत की थी, मगर वो तुम्हारे जहनों पर छाए हुए शकूक व शुबहात के गुबार को दूर ना कर सका। उसने तुमसे यह भी कहा कि अगर शहनशाह अपना वो मखसूस हुक्म वापस ले लें तो क्या तुम्हारे दिल साफ हो जाएंगे। हालांकि अहमद को इस बात का इख्तियार नहीं था, लेकिन वो मेरी और तुम्हारी भलाई के लिए अमन व आश्ती का रास्ता तलाश कर रहा था। दोस्ती का यही अंदाज होता है और रस्म जान निसारी इसी को कहते हैं। मगर उसकी पेशकश के जवाब में तुम सब ने एक ही बात कही कि आइंदा मेरा हर अमल किसी मसलहत के तहत होगा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेएतबारी कहीं नहीं देखी। अगरचे मेरे हकीकी भाइयों ने कई बार मेरी पुश्त पर इंतहाई खौफनाक वार किए, लेकिन वो बदअहद इंसान भी ये नहीं कह सकते कि मैं उनसे मसलहत और रियाकारी के पर्दे में बात करता हूँ। तुमने मेरी खूब तवाज़ो की, मैं तमाम उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। बाबर का लहजा बावकार था, लेकिन उसमें गहरे तंज की आमेजिश भी थी। तुम लोग ये बात गौर से सुन लो कि मैं दूसरे हुक्मरानों की तरह कभी बेजा जिद और सरकशी का असीर नहीं रहा। मैं तामीर और एतराफ़ का आदमी हूँ, बरसरे आम अपनी गलतियों को तस्लीम करने वाला। मगर आज मुझे अपनी किसी कोताही पर नदामत नहीं है, इसलिए कि तुमने मेरी मोहब्बतों पर शक किया। समरकंद व बुखारा के अमीर अपनी अपनी नशिस्तों पर पत्थर के मुजस्मों की तरह साकित बैठे थे। उन्हें नौजवान शहनशाह के इल्मो फजल का अंदाजा नहीं था। वो बाबर को अपनी ही तरह महज एक जंगजू और बहादुर हुक्मरान समझते थे। मगर आज जब साहिब किरा अमीर तैमूर का वारिस उनसे मुखातिब हुआ तो उन्हें पता चला कि बाबर बैक वक्त दो शमशीरों का मालिक है। एक उसके हाथ में है जो कम खतरनाक नजर आती है, और दूसरी शमशीर उसकी जबान में है जिसकी काट फौलादो आहन से भी ज्यादा है। इस बदगुमानी के बाद तुमसे किसी ताउन का सवाल करना मेरे लिए बाइसे नंग है। बाबर ने बुलंद आवाज में कहा,
میں تم سے بہت دور جا رہا ہوں، اپنی طاقت کے یہ وسائل سنبھال کر رکھنا، کسی دن تمہارے ہی کام آئیں گے۔ یہ کہہ کر بابر دربار سے نکلا اور اپنے سپاہیوں کو کوچ کا حکم دے دیا۔ احمد جمال نے شہنشاہ سے اجازت طلب کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس قبرستان میں پہنچا جہاں اس کی والدہ صفیہ خاتون دفن تھی۔ کچھ دیر تک وہ اپنی ماں کے لیے دعائے خیر کرتا رہا، پھر نیچے کی طرف جھکا اور مٹھی بھر قبر کی مٹی اٹھا کر ایک رومال میں باندھ لی۔ پھر وہ کچھ فاصلے پر واقع دوسرے قبرستان میں پہنچا جہاں اس کے والد محترم شیخ احمد گیاس اور عالیہ تاجدار آسودہ خاک تھے۔ مختصر دعا کے بعد احمد جمال نے شیخ احمد گیاس اور عالیہ تاجدار کی قبروں کی مٹی بھی اسی رومال میں باندھ لی تھی۔ اب تین مٹیاں اس طرح آپس میں مل گئی تھی کہ انہیں علیحدہ کرنا ناممکن تھا۔ اس بار میں آپ لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے جا رہا ہوں، احمد جمال اپنے والد اور عالیہ تاجدار کی قبروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا۔ اب مجھے کسی سنبل و ریحان، کسی لالا و گل اور کسی یاسمین و نسترن کی ضرورت نہیں، بس اسی مٹی کی خوشبو سے میرا مشام جاں ہمیشہ معطر رہے گا۔ احمد جمال کی آنکھیں اشکوں سے لبریز تھی اور وہ بار بار گھوڑے کو ایڑ دے رہا تھا تاکہ جلد از جلد اپنے فوجی قافلے سے جا ملے۔ بابر اور اس کے سپاہی ابھی سمرقند کی سرحدوں سے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ احمد جمال بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اب اس مختصر سے فوجی قافلے کا رخ کابل کی طرف تھا۔ بابر کی عدم موجودگی میں کابل پر اس کا سوتیلا بھائی سلطان ناصر مرزا حکومت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مغل شہنشاہ کی آمد کی خبر سنی، وہ بابر کے استقبال کے لیے کابل کی حدود سے باہر آیا اور بڑے والہانہ انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میں ہر حال میں شہنشاہ کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ سلطان ناصر مرزا بابر کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے چل رہا تھا۔ کابل کا تخت آپ کی امانت ہے، جب بھی حکم دیں گے تخت سے اتر کر خدمت گاروں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر اپنے بھائی کے اس طرز گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور اس نے خوش دلی کے ساتھ غزنی کی حکومت ناصر مرزا کے حوالے کر دی۔ کچھ دن کابل میں ٹھہر کر بابر نے ایک مختصر سی فوج کے ساتھ یوسف زئی افغانوں کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ مقامی پٹھانوں کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا اور وہ مغل شہنشاہ کے طریقہ جنگ سے بھی واقف نہیں تھے، اس لیے کثرت کے باوجود بہت جلد بابر سے شکست کھا گئے۔ اس لڑائی میں 3000 افغان قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار کر لیے گئے۔ بابر نے یوسف زئی پٹھانوں کا علاقہ اپنے ایک معتمد سردار خواجہ کلاں کے سپرد کر دیا۔